Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all in the course of software engineering concept. From last two lectures, we are studying about process models, and we discussed about some traditional software process models available in software engineering are provided by discipline of software engineering. And today we will continue our discussion on process models, but in this lecture specifically, we will talk about one of the very advanced process models that is called the unified process model. Before moving ahead, let's have a quick recap what we have done in previous two lectures. In very first lecture of the process models, we defined what is the software process models. Afterward, we moved our discussion to the waterfall process model, incremental process model, and prototyping process model. And in second lecture of the process models, we talk about rapid application development process model, spiral process model, component-based development model, and formal methods model. And we also discussed about their selection criteria, uh, the situations in which particularly these models are suitable. Today, we will continue our discussion on process model, but we will talk about one of the advanced process models that is being very commonly used in the present era. So our today's agenda is about unified process model that is being used in recent times by software engineers in software industry. We will talk about its history and introduction. And later on, we will extend our discussion to the structured approach and the object-oriented approach for the software design and development. And finally, we will discuss about different phases that are available in unified process model, as we already discussed in rest of the process models, how different phases provide us different activities to complete the software. So let's start with the history of the software process model, that is unified process model. In 1990s, three software engineers, that is James Rambock, Brady Booch, and Ivar Jacobson, began working on unified methods. They started working on unified methods, and in fact, they combine the best features of the object-oriented analysis and design methods. Means like they considered that object-oriented practice is the good one in the industry. They borrowed their best features, and secondly, they adopted additional features proposed by the experts in the industry. So they combine these two aspects and try to design the unified methods, and they came up with a unified modeling language. They came up with unified language modeling. So let's define at a very abstract level what is this UML. UML is known as Unified Modeling Language. अब इसमें समझने की बात यह है कि मॉडलिंग लैंग्वेज से क्या मुराद है, जिस तरह ये वर्ड मॉडलिंग से हमें क्लियर हो रहा है, ठीक है। इन प्रेजेंट टाइम यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज आपके तमाम इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करती है। फॉर इंस्टेंस, इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कि अगर हमने अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स यूजर से गैदर कर ली हैं, ठीक है, और इसके अलावा हमने उन रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने की बाद हम उन्हें रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है, हम उन रिक्वायरमेंट्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ताकि वो इस फॉर्मेट में हमारे पास अवेलेबल हों कि कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर अक्रॉस द वर्ल्ड वो क्या कर सके, उनको comprehend कर सके। तो definitely in that particular case we need some standards to represent those particular requirements. So ये unified modeling language is basically provide us the modeling standards which we used to use in order to represent the software requirements. ये मैं सिर्फ requirements तक इसे limit नहीं कर रहा, मैंने example में आपको requirement के point of view से बताया। अदरवाइज ये जो हमारे पास यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है, स्टार्टिंग फ्रॉम कम्युनिकेशन टिल
डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ये हमें थ्रू आउट गाइड कर रही होती है। तो कट इन शॉर्ट अगर हम जो यूज़र से रिक्वायरमेंट लेते हैं, जो मैं एग्जांपल आपको कोट किया है, उन रिक्वायरमेंट को अगर हम यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के प्रोवाइडेड स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते हुए रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है इट कैन बी अंडरस्टूड बाय एवरी पर्सन वर्ल्ड वाइड, जो कि बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, ठीक है, या कंप्यूटर साइंटिस्ट हो, या डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम कर रहा हो। तो यहाँ पे ये हमें जो UML है, इट मीन्स इट्स प्रोवाइड रोबस्ट नोटेशंस, ये हमें नोटेशंस प्रोवाइड करती है ऐसे फॉर व्हाट, फॉर मॉडलिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। हम अगर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को यूज़ करते हुए, तो ये हमें ऐसे नोटेशंस प्रोवाइड करती है, ठीक है, जिसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। हम आज के ही लेक्चर में कुछ बहुत ही बेसिक लेवल का इसका एक फ्लेवर देखेंगे, लेकिन हम डिटेल में यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज को अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे, ये कहाँ पे किन सिचुएशंस पे ये हमें नोटेशंस प्रोवाइड करती है, और हम साथ साथ उन नोटेशंस को भी सीखेंगे। और प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो ये हमारे पास इंडस्ट्री में एक डिफैक्टो स्टैंडर्ड है, या एक आप यूँ कह सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड है, कि जब कभी भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट या मॉडलिंग एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो एक चीज़ माइंड में आती है, द वन एंड ओनली दैट इज़ कॉल्ड UML, दैट इज़ यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। और इस कोर्स में हम ऑनवर्ड्स जो अपनी डिस्कशन, जिस तरह मैं अभी आपको मेंशन भी किया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज को ही यूज़ करके अपने जो इस कोर्स में है एनालिसिस के हवाले से, डिज़ाइन के हवाले से रिप्रेजेंटेशन कर रहे होंगे। हमारे पास जो यूएमएल यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है, ये हमें प्रोवाइड करती है नेसेसरी टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है, लेकिन एक इशू ये है कि ये हमें कोई स्पेसिफिक प्रोसेस फ्रेमवर्क, या एक यूँ कह लें कि हमें एक स्पेसिफिक प्रोसेस मॉडल वो प्रोवाइड नहीं करती थी। ये तब की बात कर रहा हूँ जब ये 1990s में यूएमएल लॉन्च की गई। एट दैट टाइम इट वाज़न्ट प्रोवाइडिंग एनी स्पेसिफिक मॉडल कि हम सेटअप स्टेप्स हम प्रोवाइड करें, या हम एक रोड मैप प्रोवाइड करें, और इसके अलावा हमें कोई एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करे, ठीक है, कि जिसको हम यूज़ करते हुए डेवलपमेंट कर सकें। तो इसके ऊपर जो है वो फर्दर काम किया जाने लगा कि वी नीड टू डेवलप सम मॉडल दैट इज कॉल्ड यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल, या फिर हमें कोई ऐसे फ्रेमवर्क की ज़रूरत है जो कि हमें डिटेल में बताए कि हमारे पास यूनिफाइड जो प्रोसेस मॉडल की एक्टिविटीज़ हैं उनको अचीव कैसे करना है। अपनी डिस्कशन को इस तरफ लेके जाने से पहले हम कुछ और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने यहाँ पे एक टर्म यूज़ की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स की बात की, तो पहले हम थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं कि हमने जो बारहा एक टर्म यूज़ की यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच की, ठीक है, प्रोबब्ली आपको अभी इस बात का थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कोर्स है वो इस सेमेस्टर में स्टडी कर रहे हैं, और अभी तक जितने आपने लेक्चर्स लिए होंगे प्रोबब्ली यू शुड हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डिफरेंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, या फिर आपने जो अभी तक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग सीखी होगी उसमें डिफरेंसेस का आपका आइडिया हो गया होगा। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे, हम प्रोग्रामिंग की स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहे, रादर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर्ड अप्रोच एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, और हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है उसकी बात करेंगे। जब हम अप्रोच की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की तमाम स्टेजेस, जिसमें एनालिसिस करते हैं हम सॉफ्टवेयर का, उसके बाद हम सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन बनाते हैं, और फिर हम प्रोग्रामिंग करते हैं, वो तमाम चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो वन बाय वन हम कुछ इसके मेजर डिफरेंसेस को देखते हैं, जो कि आपको अगर आप फर्दर डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आपको इस स्पेसिफिक सोर्स पे ये डिटेल्स भी अवेलेबल होंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डिफरेंस कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, इट इज सेड कि
ये हमारे पास टॉप डाउन अप्रोच है। टॉप डाउन लाइक हम एज अ होल एक प्रॉब्लम को देख रहे होते हैं, ठीक है, और उस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। जबकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच हमारे पास एक बॉटम अप अप्रोच है, जिसमें हम स्मॉल मॉड्यूल्स की फॉर्म में चीज़ों को देखते हैं, प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं और फिर छोटे छोटे मॉड्यूल्स के सोल्यूशन देते हुए उन्हें इंटीग्रेट करते हुए हम एक कंप्लीट सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। So this is the first difference between structured approach and object-oriented approach. The next difference is the programs is divided into number of submodules or functions in case of structured approach. हमारे पास जो एक प्रोग्राम होता है उसको हम फंक्शंस में सब डिवाइड करते हैं, जबकि अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की हम बात करते हैं, अभी तक आपने कुछ क्लासेस के बारे में पढ़ भी लिया होगा, तो यहाँ पे हम बेसिकली जो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं वो यूज टू ऑर्गेनाइज प्रोग्राम इन डिफरेंट क्लासेस। तो एक इसमें ये डिफरेंस है कि स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में फंक्शंस में ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में हम इसे क्लासेस में कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में जो रीयूजेबिलिटी है वो प्रॉब्ली फ्लेवर हमें नहीं मिल पाता। हम वी रेयरली एबल टू यूज द थिंग्स अगेन एंड अगेन जो हमारे पास ऑलरेडी डेवलप होती हैं, लेकिन हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास जो डिफरेंट क्लासेस हम डेवलप कर लेते हैं, अगर हम क्लास को एक यूनिट कहते हैं तो प्रॉब्ली we can use this particular class in some other project with little modification or customization. Okay, let's talk about the next point. The structure design approach usually left until end phase. तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर्ड अगर हम अप्रोच की बात करते हैं तो इसमें जो प्रोग्रामिंग की एक्टिविटी है, ठीक है, ये लास्ट में आती है। लाइक हम बहुत सारे जो एनालिसिस और डिज़ाइन की एक्टिविटीज़ एक, क्योंकि हम टॉप डाउन अप्रोच देख रहे हैं, ओवरऑल प्रॉब्लम का हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, डिज़ाइन कर रहे होते हैं और लेटर स्टेजेस पे जाके हम प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करते हैं। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात कर रहे होते हैं तो इसमें हमारे पास जो प्रोग्रामिंग की एक्टिविटी है वो कंकरेंटली, या आप यूँ कह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद पैरेलल स्टार्ट हो जाती है। लाइक सब मॉड्यूल है, एक प्रॉब्लम के ऊपर हम काम कर रहे थे, उसके सब पोर्शन पे काम कर लिया तो प्रॉब्ली हम उसकी इम्प्लीमेंट कर देंगे और साथ हम दूसरे का एनालिसिस और डिज़ाइन करना शुरू कर देंगे। तो ये भी एक बहुत ही क्लियर डिफरेंस है इन दोनों केसेस में। उसके बाद हमारे पास ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि लिंक्ड है प्रीवियस पॉइंट के साथ। इट शोज अ क्लियर ट्रांजिशन फ्रॉम डिजाइन टू इम्प्लीमेंटेशन। जिस तरह हमने प्रीवियस केस में बात की, चूंकि प्रोग्रामिंग हमारे पास बहुत एंड पे आ रही होती है तो सारे फेजेस एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में चल रहे होते हैं, तो हमें एक क्लियर जो ट्रांजिशन है वो पता चलती है कि ओके नाउ वी हैव डन द एनालिसिस एंड डिजाइन एक्टिविटीज एंड वी आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच की तो इसमें बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा ब्लर होती हैं, क्योंकि हम पैरेलल बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे होते हैं। जो ट्रांजिशन होती है वो हमें क्लियर फील नहीं होती कि जी ओके ये चीज़ खत्म होगी और हम अगला काम करने लगे हैं, क्योंकि हम एक मॉड्यूल पे काम कर रहे होते हैं और प्रॉब्ली एक मॉड्यूल के ऊपर हम प्रोग्रामिंग काम कर रहे हैं और दूसरे मॉड्यूल के ऊपर हम एनालिसिस और डिज़ाइन कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास अगर हम बात करें कि इसकी रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को अगर हम इसके एनालिसिस मॉडल को या डिज़ाइन मॉडल को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो हमारे पास डेटा फ्लो डायग्राम्स या रिलेशनशिप डायग्राम्स एग्जिस्ट करती हैं। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करते हैं तो probably we have numerous notations which are provided by UML। हमारे पास UML बहुत सारे नोटेशंस प्रोवाइड करती है जिससे हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। लाइक हमारे पास क्लास डायग्राम है, सीक्वेंस डायग्राम है, स्टेट चार्ट डायग्राम है, यूज केसेस हैं, ठीक है, एंड मेनी अदर नोटेशंस अवेलेबल इन many other notations available to represent the analysis and design activities in object oriented approach। तो हम इन नोटेशंस जो UML हमें प्रोवाइड करती है, जिन जिन स्टेजेस के ऊपर हम मूव करते जाएंगे, साथ हम इन नोटेशंस को सीखने की कोशिश करेंगे। Last point is projects can be managed easily due to clearly identifiable phases। क्योंकि हमारे पास ट्रांजिशन बड़ी क्लियर होती है, ठीक है, तो प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट आसान होती है। हम इस एक्टिविटी से उस एक्टिविटी में जा रहे होते हैं। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के केस में चूंकि हमारे पास जो बाउंड्रीज होती हैं वो बहुत ब्लर होती हैं, हमारे पास ट्रांजिशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर नहीं होती। तो दैट्स वाई जो हमारे पास सॉफ्टवेयर को मैनेज करना होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में कंपैरेटिवली डिफरेंट होता डिफिकल्ट होता है, सॉरी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस कोर्स में जो हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, जो प्रेजेंट एरा में अभी जो टेक्निक यूज़ की जा रही है वो हमारे पास ऑब्वियसली जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच ही है। तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के ऊपर फोकस करेंगे। हाँ, हम
कुछ चीज़ें बहुत ही लिमिटेड स्कोप के साथ जो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की हैं, इनको भी हम सीखने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको फ्यूचर में अगर ऐसे स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के थ्रू सिस्टम्स अगर डिज़ाइन करना पड़े या कहीं ऐसे अप्रोचेस को स्टडी करना पड़े, तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, तो हम अपनी डिस्कशन को एक्सटेंड करते हैं। जो हमने लास्ट स्लाइड के ऊपर यहाँ पे अपनी बात एक क्वेश्चन के ऊपर छोड़ दी थी कि हमारे पास जब 1990s के अंदर ये एक एक्टिविटी यूनिफाइड मेथड्स के ऊपर स्टार्ट की गई, जो कि कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स से उन्होंने स्टार्ट की, and they probably combine the best features of object oriented and the experience shared by very experts, उन्होंने उनको combine करते हुए they came up with UML। लेकिन हमारे पास UML तो provide कर दी गई, notations तो provide कर दिए गए, but they couldn't provide some model that may deals with the object oriented approach, ठीक है, या फिर हमारे पास वो कोई framework provide नहीं कर सके। ये हमने लास्ट स्लाइड पे यहाँ तक अपनी डिस्कशन जो है वो छोड़ दी थी। इसको देखते हैं आगे। तो हमारे पास नेक्स्ट फ्यू इयर्स में क्या हुआ कि हमारे पास यही जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे, दे डेवलप द यूनिफाइड प्रोसेस। इन्होंने क्या किया, दे फेल्ट कि हमारे पास समथिंग इज मिसिंग इन यूएमएल जो कि स्टेजेस को भी डिफाइन करे। तो उन्होंने क्या किया, एक यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल डिवाइस किया, या आप यूँ कह लें कि हमारे पास एक फ्रेमवर्क डिवाइस किया है जो कि प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो करता है और यूएमएल के थ्रू रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो इसका मतलब कि उस वक्त यूएमएल सिर्फ बना दी गई और उसका मेथड मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस स्टेज के ऊपर दे प्रपोज द मॉडल। इस मॉडल को हम कहते हैं यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल, यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल, ठीक है। और प्रेजेंट एरा में हम देखें तो हमारे पास ये यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल और उसके साथ साथ जो यूएमएल है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज हो रही है। दीज आर वाइडली यूज्ड स्टैंडर्ड्स इन इंडस्ट्री जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के थ्रू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं। अगर हम यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल को देखें कि ये कौन से स्टाइल को फॉलो कर रहा है, कौन सी अप्रोच को फॉलो कर रहा है, तो डेफिनेटली इट्स आइटरेटिव इन नेचर। आइटरेटिव से मुराद क्या है, लूप बैक मैकेनिज्म इसमें एग्जिस्ट करता है। लाइक जिस तरह हमने प्रोटोटाइपिंग की बात की, हमने स्पाइरल की बात की, और उसके साथ साथ ये ब्लेंड कर रहा है इसमें इंक्रीमेंटल अप्रोच को। इंक्रीमेंटल से क्या मुराद है कि we are not going to deliver, or we are not going to develop the software as a whole, rather we are developing software in increments, in small modules, small logical modules। तो ये यहाँ पे इंक्रीमेंटल फ्लेवर और जो हमारे पास आइटरेटिव फ्लेवर है, इसको यूज करते हुए जो है हम क्या करते हैं, सिस्टम्स को डेवलप करते हैं। ओके, तो हमारे पास अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें कि हमारे पास फिर एक यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल क्या चीज़ है, तो यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल जो है बेसिकली ये बेस्ट फीचर्स जो हैं या बेस्ट करेक्टरिस्टिक्स जो हैं ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स, एक तो उनको पिक करता है। लाइक हमने ट्रेडिशनल मॉडल्स स्टडी कर लिए हैं बहुत सारे प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर। ट्रेडिशनल मॉडल्स हमारे पास जो प्रोसेस मॉडल्स अवेलेबल हैं, उनकी जो गुड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको एक तो लेता है, और दूसरा हमारे पास ये एजाइल डेवलपमेंट, एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो फ्लेवर है, ठीक है, उसको ये लेता है। और इन दोनों के ब्लेंड के साथ जो हमारे पास चीज़ अवेलेबल होती है, दैट इज़ कॉल्ड यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपको फिलहाल आइडिया नहीं होगा कि व्हाट इज़ एजाइल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ इनफैक्ट एजाइल डेवलपमेंट स्टाइल। फिलहाल आप इतना देखें कि ये हमारे पास डेवलपमेंट का एक ऐसा स्टाइल है जो रिसेंट टाइम में इंडस्ट्री में बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा है, ठीक है। और इसको अगर हम आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करें तो दिस इज़ अ वेरी मच फ्लेक्सिबल स्टाइल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ओके, तो एनीवे इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, नीड नॉट टू वरी कि हमारे पास एजाइल डेवलपमेंट क्या है। उसके बाद अगर हम बात करें, एक चीज़ अभी आपको यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जानी कि इनफैक्ट व्हाट इज़ यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल। इनफैक्ट यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल picks the good characteristics from the traditional process models and blend it with the principles of the agile software development, और इस तरह से हमारे पास ये यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल हमें मिलता है। यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो मेन ऑब्जेक्टिव किसके ऊपर है, इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टमर कम्युनिकेशन। यानी ये क्या करता है, ये मॉडल ये कहता है कि आप जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, यू शुड टेक केयर अबाउट द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू।
कस्टमर जो पॉइंट ऑफ व्यू है सिस्टम के बारे में, उसके बारे में आपने बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। यानी कस्टमर की नीड्स का आपने ख्याल रखना है और कस्टमर किस तरह सिस्टम को चाह रहा है, आपने उसके ऊपर फोकस करना है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए सिस्टम को डेवलप करना है। यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, यहाँ पे ब्रैकेट में कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू के सामने यूज केसेस। So basically, my dear students, these use cases are basically kind of notation provided by unified modeling language. हम अगर थोड़ा सा टेक्निकल होके देखें, हमने कहा था कि UML is language that provides a notation in order to represent the different activities of software design and development. तो यहाँ पे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब सिस्टम के रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास यूज केसेस होते हैं अवेलेबल। यूज केसेस के बारे में हम इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आपको एक बिग पिक्चर दे दूं, यूज केस क्या होता है। यूज केस बेसिकली ये चीज है कि केसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एंड यूजर विद द सिस्टम, या अगर एक एंड यूजर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो कौन से पॉसिबल सिचुएशंस हैं या केसेस हैं या सिनेरियोज हैं जिनमें यूजर इंटरेक्ट करता है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू डिजाइन द सिस्टम। तो जब वो हमें केसेस सिनेरियोज पता चल जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें जो एक्चुअल सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हैं यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमें पता चल रही हैं। ओके, तो यहाँ तक हम यूज केसेस पे इतनी ही डिस्कशन रखेंगे। हम डिटेल्स में देखेंगे आगे, हमारे अपकमिंग काफ़ी लेक्चर्स जो हैं वो यूज़ केसेस को कवर कर रहे होंगे। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल है, इसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट खासा है कि फ्यूचर चेंजेस पे फोकस करता है और रीयूजेबिलिटी के ऊपर फोकस करता है। यानी अगर किसी भी स्टेज में डेवलपमेंट में अगर कोई चेंज रिक्वेस्ट आ जाती है, तो प्रेफरेबली ये उस चेंज रिक्वेस्ट को अकोमोडेट करने के लिए हमें मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। और ये अगर फ्लेवर हम बात करें चेंज वाला, इनफैक्ट ये ट्रेड जो आप ये देखिए एजाइल की तरफ से आता है। हम आगे जाके जब एजाइल को पढ़ेंगे तो यू विल फील के एजाइल हमारे पास जो है वो चेंज को अकोमोडेट करने के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। और दूसरी चीज़ है रीयूजेबिलिटी, कि इंस्टेड ऑफ री इन्वेंटिंग द व्हील और इंस्टेड ऑफ डूइंग थिंग्स अगेन एंड अगेन फ्रॉम स्क्रैच, प्रेफरेबली दिस मॉडल सजेस्ट अस टू रीयूज द एग्जिस्टिंग थिंग्स। ओके, हमारे पास हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये कौन से स्टाइल को फॉलो करता है। एवोल्यूशनरी स्टाइल है जिसमें हम आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल दोनों स्टाइल्स को फॉलो कर रहे हैं। आइटरेटिव मींस लूप टैग स्टाइल होता है, और इंक्रीमेंटल वी यूज टू डेवलप द थिंग्स इन डिफरेंट इंक्रीमेंट्स और इन डिफरेंट मॉडल्स। अब हम बात करते हैं फेजेस जो यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल हमें प्रोवाइड करता है। तो यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल जो हमें फेजेस प्रोवाइड कर रहा है, ये भी अ, उसी तरह के फेजेस हैं जिस तरह के हमारे रेस्ट ऑफ प्रोसेस मॉडल फेजेस यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो, हमारे पास कम्युनिकेशन था, प्लानिंग था, फिर हमने मॉडलिंग पे बात की, फिर हम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन के बाद हमने बात की डिप्लॉयमेंट के ऊपर। तो दीज आर डिफरेंट फेजेस बीइंग यूज्ड बाय ट्रेडिशनल प्रोसेस मॉडल, एंड यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल इज नॉट एन एक्सेप्शन। ये हमारे पास कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो इट इज ऑल्सो यूजिंग, ठीक है, इट ऑल्सो यूजिंग द सेम फेजेस, सेम स्टेजेस, बट विद लिटिल वेरिएशन। यहाँ पे वेरिएशन है। आप यूँ समझ लें कि जो नेमनक्लेचर है, जो नेमिंग कन्वेंशन है, वो प्रॉब्ली डिफरेंट है। बैकएंड पे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो यही हैं, कम्युनिकेशन भी हो रही है, प्लानिंग भी हो रही है, मॉडलिंग भी हो रही है, कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, और डिप्लॉयमेंट भी हो रही है। लेकिन इसका जो नेमनक्लेचर है वो डिफरेंट है, जो हमें इस फिगर से समझ आएगा। लेकिन इस फिगर का एक एक्सटेंडेड वर्जन हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो एक्चुअल जो स्टेजेस थी, जो कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल प्रोसेस मॉडल्स फॉलो कर रहे थे, और जो यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल की जो फिगर में यूज हो रही हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, इनको समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल की एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। हम इसके फेजेस की डिटेल नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर देखते हैं। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास जो यूनिफाइड कर रहा है, इसमें हमारे पास इंसेप्शन है, हमारे पास एलेबोरेशन है, हमारे पास कंस्ट्रक्शन है, हमारे पास ट्रांजिशन है, और हमारे पास प्रोडक्शन है। तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि हमारे पास ये फिर वो एक्चुअल जो हमने कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन या हमने डिप्लॉयमेंट की बात की, ये तो फिर हमारे पास कोई डिफरेंट इनफैक्ट फेजेस हैं, ये डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो यस, बाय नेम ये डिफरेंट है, लेकिन बैकएंड पे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो इन्हीं की तरह की हो रही हैं। इसीलिए हम जो ट्रेडिशनल स्टेजेस थी उनके दरमियान और जो यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल हमें स्टेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, इनके दरमियान हम रिलेशनशिप को इस फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं।
माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे यू कैन सी देयर इज इंसेप्शन। इंसेप्शन फेज जो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दो स्टेजेस जो कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल प्रोसेस मॉडल की दो स्टेजेस होती हैं उनको बेसिकली ये कवर करता है, जिसमें हमारे पास कम्युनिकेशन आ जाती है और जिसमें हमारे पास प्लानिंग आ जाती है। तो इट मीन्स के इंसेप्शन इज द फेज that consist of communication activities and planning activities, कि यहाँ पे हम communication perform करेंगे in detail and some part of the planning will be done in inception phase। ठीक है, जो यहाँ पे ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज है इंसेप्शन, जो कि ट्रेडिशनल प्रोसेस मॉडल की दो स्टेजेस को कवर करती है। कम्युनिकेशन वाले प्रोसेस डिटेल में करते हैं, जिसमें हम प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना, और फिर कुछ पोर्शन जो प्लानिंग के हैं वो इसको कवर कर रही होती है। जब हम बात करते हैं इसके सेकंड फेज की, दैट इज द फेज ऑफ एलेबोरेशन, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एलेबोरेशन का जो फेज है हमारे पास, इट कंसिस्ट ऑफ अगेन टू स्टेजेस ऑफ द ट्रेडिशनल प्रोसेस मॉडल्स, दैट इज द प्लानिंग। हमारे पास प्लानिंग है और उसके साथ क्या है, हमारे पास मॉडलिंग है। तो यहाँ पे बेसिकली हम रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ प्लानिंग जो हमारे पास रह जाते हैं, जो इंसेप्शन में नहीं हो सकते, हम उनको यहाँ पे ज़रा डिटेल में देखते हैं, प्लानिंग के पोर्शन को कंप्लीट करते हैं। और फिर हमारे पास जो मॉडलिंग की एक्टिविटी, जिस तरह से हमारे पास कन्वेंशनल उसमें या ट्रेडिशनल प्रोसेस मॉडल्स जो फॉलो कर रही थी, उसी तरह हम मॉडलिंग परफॉर्म करते हैं। और मॉडलिंग में डेफिनेटली, जिस तरह हम पहले बात कर चुके हैं, मॉडलिंग हमारी पास दो तरह की होती है, एनालिसिस मॉडलिंग और डिज़ाइन मॉडलिंग। वो यहाँ पे भी उसी तरह से दो तरह की हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे पास जो थर्ड एक्टिविटी है, दैट इज कंस्ट्रक्शन। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन इज सोलली सिमिलर एज कंस्ट्रक्शन इन द प्रीवियस मॉडल्स। ठीक है, जो कि प्रीवियस मॉडल में हमारे पास एक स्टेज के तौर पे था, तो हम वही एक्टिविटीज़ यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन की केस में आप देख सकते हैं कि सोलली कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं। नेक्स्ट स्टेज की अगर हम बात करें, दैट इज द फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज जो है, इसको अगर देखें तो ये कंस्ट्रक्शन की भी कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं और डिप्लॉयमेंट की हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज जो कि इस फेज में, कंस्ट्रक्शन के फेज में कंटिन्यू होती हैं, वो वाली एक्टिविटीज के जो फाइनल टचेस हैं वो हम ट्रांजिशन में देते हैं। और उसके साथ साथ हम क्या कर रहे होते हैं, डिप्लॉयमेंट वाले फैक्टर को देख रहे होते हैं। डिप्लॉयमेंट मीन्स चीज़ें कस्टमर को हैंड ओवर करना, उसमें उसे ऑपरेशनल बनाना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, फीडबैक प्रोवाइड करना। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो इसमें एक आखिरी एक स्टेज आ रही है, दैट इज द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में हमारे पास क्या है, यू कैन सी यहाँ पे लिखो सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट, या फिर एक और चीज़ लिखी है रिलीज। ठीक है, तो इसको ज़रा समझने की कोशिश करें। यहाँ सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट से मुराद ये है कि हमने कहा था कि ये वाला जो प्रोसेस मॉडल है, इट यूज टू यूज द इंक्रीमेंटल अप्रोच। So it means we are not delivering the complete product, rather we are delivering one specific increment or one specific module of the whole project। तो इसे हम एक इंक्रीमेंट कह सकते हैं, या हम इसे कह सकते हैं कि रिलीज हम कह सकते हैं। एक रिलीज, हम फर्स्ट रिलीज दे रहे हैं, हम सेकंड रिलीज दे रहे हैं। So my dear students, this is in fact the relationship between the stages set by the unified process model and the stages we have already discussed, provided in the traditional software process model or provided by generic process model। तो इस तरह से आपको ये डिफरेंस क्लियर होगा कि नेमनक्लेचर डिफरेंट है, या नेमिंग जो कन्वेंशंस हैं वो डिफरेंट यूज़ की जा रही हैं, इंसेप्शन, एलैबोरेशन, कंस्ट्रक्शन, ट्रांजिशन और प्रोडक्शन। लेकिन बैक एंड पे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो बिल्कुल वैसे ही हो रही हैं जिस तरह के हमने बाकी प्रोसेस मॉडल्स में देखा। तो अब हम इसकी देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट फेजेस में जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वो एक्टिविटीज़ क्या हो रही है। तो यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल में अगर हम बात करते हैं सबसे पहले स्टेज के ऊपर, द स्टेज ऑफ इंसेप्शन, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। इंसेप्शन फेज में हमारे पास क्या हो रहा होता है। इंसेप्शन फेज में हमारे पास इट कंसिस्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्लानिंग। हम लास्ट स्लाइड के ऊपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड यू कैन सी ओवर हेयर कि हमारे पास क्या है, इंसेप्शन कंसिस्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्लानिंग। अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कम्युनिकेशन में यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल कौन कौन सी एक्टिविटीज़ या कौन कौन सी चीज़ें हमें बताता है कि ये कवर की जानी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले कम्युनिकेशन में हम जो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक सॉफ्टवेयर की। ठीक है, कि सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, हम उन बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को क्या करते हैं, यूज टू आइडेंटिफाई दीज बिजनेस रिक्वायरमेंट। वी यूज टू आइडेंटिफाई दीज बिजनेस रिक्वायरमेंट, जिस तरह हमने पहले बात की कि वी यूज टू गैदर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द कस्टमर।
इट इज वन एंड सेम थिंग। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि वी आर इनफैक्ट इंटरेस्टेड टू गैदर द बिजनेस रिक्वायरमेंट, ठीक है, हम बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। और यहाँ पे जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज लिखी हुई है कि हम इनको डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब भी करते हैं। कैसे डिस्क्राइब करते हैं? द न्यू थिंग यू विल फाइंड इन दिस स्पेसिफिक स्टेज, that is we used to describe these business requirements in use cases। और यहाँ पे लिखा हुआ है preliminary use cases। preliminary से क्या मुराद है? we used to represent these requirement in basic level use cases। basic level use cases मीन्स आप यूं समझ लेंगे हमारे पास यूज केसेस जो शुरू में बनते हैं बहुत बेसिक लेवल के होते हैं, फिर हम उन यूज केसेस को स्टडी करते हैं, ठीक है, एंड वी केम टू नो कि इसमें कुछ चीज़ें और डिटेल में हमें एलेबोरेट करनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जब उनकी डिटेल्स को ऐड करते हैं तो इट बिकम्स एलेबोरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर यूज केसेस, वो प्रिलिमिनरी नहीं रहते। तो फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए यूज केसेस क्या होते हैं, ये हम लास्ट प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस किया। प्रीलिमिनरी यूज केसेस हमारे पास बेसिक लेवल के यूज केसेस होते हैं, और इन यूज केसेस के थ्रू हम एक कस्टमर के जितने भी फीचर्स या फंक्शंस जो हमें बताता है, जो कि हमारे पास डिफरेंट जो एंड यूजर्स होते हैं वो हमें बताते हैं, हम उनको देख रहे होते हैं। लाइक जिस तरह अगर हम बात करते हैं कि सी यू ऑनलाइन में, सी यू ऑनलाइन की अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो सी यू ऑनलाइन में प्रॉब्ली हमारे पास फैकल्टी क्या है, एक एंड यूज़र है, इसी तरह स्टूडेंट एंड यूज़र है। तो इन इसके केस में देखें तो जो फैकल्टी है प्रॉब्ली दे नीड न्यूमरस फंक्शनैलिटीज ऑन सी यू ऑनलाइन। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो हैं इन्हें भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज रिक्वायर्ड होती हैं। तो हम फैकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी रिक्वायरमेंट्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं प्रीलिमिनरी यूज केसेस में। इसी तरह से स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिक्वायरमेंट होती हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं यूज केसेस की फॉर्मेट में। इसके बाद जो हम एक और इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, दैट इज वी यूज टू डेवलप द रफ आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम। रफ आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम। अब रफ आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम से क्या मुराद है? द सिस्टम वी आर गोइंग टू डेवलप, जिसके बारे में हमने रिक्वायरमेंट्स गैदर कर ली हैं। नाउ प्रोबब्ली वी हैव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम आफ्टर गेटिंग रिक्वायरमेंट फ्रॉम द यूजर। ओके, तो अब ये हम क्या करते हैं, बेस्ड ऑन दोज रिक्वायरमेंट वी यूज टू डेवलप आर्किटेक्चर, जो कि एक बहुत ही बेसिक फॉर्म में होगा, जिसे हम रफ आर्किटेक्चर कह रहे हैं। आर्किटेक्चर है क्या? आर्किटेक्चर इज इन फैक्ट नथिंग but tentative outline of the subsystems and the functions and features। ठीक है, फीचर्स जो प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम। कैसे? फॉर इंस्टेंस हमें पता चला कि जी ओके हम एक सिस्टम बनाने जा रहे हैं, और ये जो सिस्टम है, फॉर इंस्टेंस अगर हम सी ऑनलाइन की बात कर लेते हैं, चलिए उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास हमें ये पता चलता है कि जी ओके एक सिस्टम है, इसमें फैकल्टी का मॉड्यूल है, इसमें स्टूडेंट्स का मॉड्यूल है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का मॉड्यूल है, इसमें एग्जामिनेशन का मॉड्यूल है, फॉर इंस्टेंस। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल है। तो अब अगर हमने ये एक रफ आर्किटेक्चर काइंड ऑफ थिंग हमारे पास आ जाती है कि ओके ये हमारे पास ओवरऑल सिस्टम है। ओवरऑल सिस्टम क्या है? दैट इज कॉल्ड सी ऑनलाइन, एंड सी ऑनलाइन कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस सब सिस्टम्स। और फैकल्टी का सब सिस्टम के अंदर क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए? ये होने चाहिए। स्टूडेंट में क्या फंक्शनलिटीज या फीचर्स होने चाहिए? वो ये होने चाहिए। इसी तरह एग्जामिनेशन में क्या होने चाहिए? फॉर इंस्टेंस ये होने चाहिए, और सो फोर्थ इन केस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन केस में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम बेसिकली एक रफ आर्किटेक्चर जो है वो डिज़ाइन कर लेते हैं। ओवरऑल जो सिस्टम होता है वो हमें पता चल जाता है। अब आप खुद देख लें कि हमने पहले प्रीलिमिनरी यूज केसेस बनाए, यानी हमें पता चल जाए कि डिफरेंट यूजर्स ने क्या क्या रिक्वायरमेंट परफॉर्म करनी है। अब देखें हमें ये पता चल गया ये डिफरेंट यूजर्स ने क्या करना है, इस यूजर ने क्या करना है, इस यूजर ने क्या करना है, इस यूजर ने क्या करना है। और फिर जब ये चीज़ें बनती हैं तो प्रॉब्ली वी यूज टू गेट द बिग पिक्चर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, और हम उसकी एक कंप्लीट पिक्चर लेते हैं और एक रफ आर्किटेक्चर हम बना देते हैं इस तरह से सिस्टम का। अब यहाँ से भी आपको फील होगा कि ये हम कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो अप्रोच होती है, हम यहाँ पे देखें तो ये बॉटम अप अप्रोच है कि हम क्या कर रहे हैं, छोटी सी चीज़ों से स्टार्ट कर रहे हैं, इसे इंटीग्रेट करते जा रहे हैं। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे जो इंसेप्शन फेज में अगला काम कर रहे होते हैं, दैट इज प्लानिंग एक्टिविटी। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, वी यूज टू प्लान अबाउट द रिसोर्सेज, हमें कितनी मैन पावर रिक्वायर्ड है, ठीक है, कितने रिसोर्सेज इसके लिए हमें रिक्वायर्ड हैं। हम चीज़ों को एस्टिमेट करते हैं, हमें कितनी कॉस्ट इसके ऊपर एंकर करेगी, और एंड सो फोर्थ। हम इन चीज़ों को देख रहे होते हैं कि जो जो हमें रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं। इसी तरह से हम देख रहे होते हैं कि इस प्रोजेक्ट से लिंक्ड अगर कोई रिस्क हैं तो उन रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रिस्क आपके बहुत तरह के हो सकते हैं, जो बहुत कॉमन रिस्क हैं आपका टेक्निकल रिस्क हो सकते हैं, फाइनेंशियल रिस्क हो सकते हैं। टेक्निकल रिस्क मुराद जो डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसी चैलेंजिंग टास्क है जो डेवलप करने में आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। और फाइनेंशियल रिस्क ये हो सकते हैं कि प्रॉब्ली आपका जो बजट है
वो जो आप जिस तरह से फोर सी कर रहे हैं वो उस तरह से ना हो, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, इनको मैनेज करना मुश्किल हो जाए। और इसके अलावा आप क्या करते हैं, प्लानिंग में स्केजुलिंग कर रहे होते हैं, आप एक कंप्लीट इसके लिए स्केड्यूल प्रोवाइड करते हैं कि जो रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज सॉफ्टवेयर के अंदर आएंगी, यानी अपकमिंग जो स्टेजेस, जो यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल हमें कह रहा है इंसेप्शन के बाद वाली, वो स्टेजेस हम किस किस तरह से परफॉर्म कर रहे होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट इंसेप्शन फेज, कि हम इंसेप्शन फेज के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं। Okay, let's talk about the next phase, or next stage of the unified process model, that is the phase of elaboration. जिस तरह नाम से यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि वी आर गोइंग टू एलेबोरेट थिंग्स, कौन सी चीज़ों को एलेबोरेट करने जा रहे हैं, वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस स्टेज इंसेप्शन। यानी इंसेप्शन में जो हमने काम कर लिए हैं वो हमें इस स्टेज में एज एन इनपुट मिलेंगे, और फिर हम एलेबोरेशन की एक्टिविटी उसको परफॉर्म कर सकेंगे। एलेबोरेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इट कंसिस्ट ऑफ प्लानिंग, ठीक है, हमारे पास प्लानिंग इसमें हो रही है, और दूसरा क्या हो रहा है, मॉडलिंग हो रही है। यू कैन सी ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम दैट एलेबोरेशन is basically comprising of planning और modeling activities। अब इसमें इनफैक्ट हम कर क्या रहे होते हैं एलेबोरेशन में, यू कैन सी वी आर गोइंग टू रिफाइन एंड एक्सपैंड। व्हाट Number one, we have already done the use cases development, preliminary use cases development in the previous phase, that is the phase of inception. And now we are going to refine these use cases. हम यहाँ पे इन्हें क्या कर रहे हैं, हम रिफाइन करने जा रहे हैं। लास्ट स्लाइड में मैं आपको बताया कि यहाँ पे मैं आपको यूज केसेस, प्रीलिमिनरी और रिफाइंड यूज केसेस में डिफरेंस नहीं बताऊंगा, ये आपको बहुत कंफ्यूज करेगा स्टेज के ऊपर। लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए कि हमारे पास प्रीलिमिनरी यूज केसेस जो होते हैं वो कम डिटेल्स के साथ होते हैं, और जो ऑब्वियसली हमारे पास रिफाइंड या एक्सपेंडेड यूज केसेस होते हैं वो डिटेल में होते हैं। तो इट मीन्स कि इंसेप्शन में जो प्रिलिमिनरी यूज केसेस होते हैं हम उनको यहाँ पे दोबारा स्टडी करते हैं, एंड वी ट्राई टू एक्सपेंड एंड रिफाइन दोज पर्टिकुलर यूज केसेस इफ वी डिजायर्ड। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास जो एक रफ आर्किटेक्चर बना हुआ था, उस रफ आर्किटेक्चर को हम यूज़ करते हैं, और उसकी बेस पे हम यहाँ पे डिटेल्ड आर्किटेक्चर रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाते हैं, जिसमें 5 डिफरेंट व्यूज़ हम डिस्कस करते हैं। 5 डिफरेंट व्यूज़ हम डिस्कस करते हैं सिस्टम के, यानी हम सिस्टम को 5 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। कौन कौन से डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, इनको ज़रा हम देख लेते हैं। हमारे पास है यूज केस मॉडल, यानी हम सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वी यूज टू रिप्रेजेंट द सिस्टम थ्रू यूज केस मॉडल। अब यूज केस मॉडल क्या है, यूज केसेस का तो आपको पता चल गया कि यूज केस क्या है। बेसिकली यूज केसेस आर बेसिकली सिनेरियोज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ यूजर विद द सिस्टम, जिनकी हमने अभी प्रीलिमिनरी यूज केसेस की बात की और एक्सपेंडेड। तो बेसिकली वही जो यूज केसेस हमें मिलेंगे। अब इसकी यूज केसेस की बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। एक इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, फॉर इंस्टेंस हमारे पास है, उसे कहते हैं यूज केस डायग्राम। अगर हम चलें, फिलहाल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कह देते हैं कि वी कम अप विद यूज केस डायग्राम ऑफ ए कंप्लीट सिस्टम। और ये क्या है, बेसिकली दिस इज काइंड ऑफ अ मॉडल। ये कहते हैं कि दिस इज काइंड ऑफ मॉडल जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है यूजर की तमाम रिक्वायरमेंट्स को, या सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ पे एक इस पॉइंट से सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, रिक्वायरमेंट मॉडल। दूसरा क्या है, रिक्वायरमेंट मॉडल। अब इनफैक्ट अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास यूज केस मॉडल इज इनफैक्ट रिक्वायरमेंट मॉडल ही हमारे पास यहाँ पे बनता है, कि हम रिक्वायरमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेकिन इवन देन इफ वी हैव सम रिक्वायरमेंट्स दैट आर नॉट बीइंग रिप्रेजेंटेड, आर नॉट बीइंग एबल टू रिप्रेजेंटेड थ्रू यूज केस डायग्राम्स, तो हम क्या करते हैं, इन रिक्वायरमेंट्स को भी यहाँ पे एक्सप्लिसिटली हम नोट डाउन कर लेते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास डिज़ाइन मॉडल है। अब डिज़ाइन मॉडल में हम क्या कर रहे हैं, हम सिस्टम के डिज़ाइन रिलेटेड जो एलिमेंट्स होते हैं उनको डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बहुत डिटेल में डिज़ाइन को नहीं देख रहे होते। ठीक है, आई एम सॉरी, यहाँ पे हम डिज़ाइन को ऑब्वियसली जब मॉडलिंग की बात करते हैं तो हमने ऑलरेडी बात की थी कि एनालिसिस मॉडलिंग पे और डिज़ाइन मॉडलिंग की हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ये डिज़ाइन मॉडल पे बात हो चुकी है, तो इनफैक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द डिज़ाइन मॉडल, जो हम डिज़ाइन मॉडलिंग की यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट थिंग इज़ द इम्प्लीमेंटेशन मॉडल, के सॉफ्टवेयर को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या प्लेटफॉर्म होगा, ठीक है, फ्रेमवर्क्स क्या होंगे, किस तरह के होंगे। तो ये हम चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन में डिस्क्राइब करते हैं। और इसी तरह से डिप्लॉयमेंट मॉडल, कि हमने जो सिस्टम में आफ्टर कंस्ट्रक्शन या आफ्टर कोडिंग एंड टेस्टिंग हम सिस्टम को कैसे डिप्लॉय करेंगे, इन तमाम चीज़ों को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास आप यूँ समझें कि जो हमने रिक्वायरमेंट्स गैदर की होती हैं इंसेप्शन में, हम उन रिक्वायरमेंट्स की बेस पे हम क्या करते हैं, सिस्टम को फर्दर डिटेल में स्टडी कर रहे होते हैं।
इसे एक्सपेंड करते हैं और इसके यूज़ किस मॉडल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, रिक्वायरमेंट मॉडल के थ्रू, डिज़ाइन मॉडल, इम्प्लीमेंटेशन मॉडल और डिप्लॉयमेंट मॉडल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। नीड नॉट टू वरी अबाउट दीज टर्मिनोलॉजीज, वी हैव डिस्कस्ड इन दिस पॉइंट अबाउट डिफरेंट मॉडल्स। हम इन मॉडल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, ये मॉडल्स बनाए कैसे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑब्वियसली इसमें जो इसका दूसरा पार्ट था प्लानिंग का, कि हम क्या करते हैं रेस्ट ऑफ द जो हमारे पास चीज़ें होती हैं प्लानिंग में जो हमने छोड़ दी थी या उस वक्त पिक्चर क्लियर नहीं थी इंसेप्शन में, तो उनको हम यहाँ पे कवर करते हैं, या प्रीवियस टाइम जो प्रीवियस फेज में जो हमने प्लानिंग की थी उसको केयरफुली रिव्यू करते हैं और एलेबोरेट करते हैं। हम स्कोप के बारे में कि सिस्टम की बाउंड्रीज क्या होंगी, क्या क्या चीज़ें हमने करनी है क्या नहीं करनी, जो रिस्क है उन्हें फर्दर देखते हैं। डिलीवरी डेट्स के बारे में जो हमने ऑलरेडी स्केजुलिंग में बात की है उनको हम फर्दर उसके ऊपर डेलिब्रेशन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जो प्लानिंग का फेज़ है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं एलेबोरेशन के अंदर ही। तो यूं एलेबोरेशन का फेज़ हमारे पास दो स्टेजेस के ऊपर मुश्तमिल है, प्लानिंग और मॉडलिंग के ऊपर, जिसको हमने डिटेल में देखा। अब हम देखते हैं अगले फेज़ को। द नेक्स्ट फेज़ इज द फेज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन फेज ऑफ यूनिफाइड प्रोसेस इज आइडेंटिकल टू द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, ठीक है, डिफाइंड इन जेनेरिक सॉफ्टवेयर प्रोसेस। क्योंकि हमने देखा था कि इसकी वन टू वन रिलेशनशिप है, ये जो काम हो रहा है ये बिल्कुल यहाँ पे ये उसी तरह से वन टू वन मैप हो रहा है हमारे पास। जैसे वहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्शन का फेज था, यहाँ पे भी है। अब यहाँ कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है, अब देखें तो एलेबोरेशन की जितनी हमारे पास आउटपुट है वो यहाँ इनपुट बनेगी। यानी हमने जो तमाम डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया हुआ है, ठीक है, हमने डिज़ाइन कंप्लीट कर ली, सॉफ्टवेयर का कंप्लीट डिज़ाइन अवेलेबल है। तो अब हमने क्या करना है, फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर डिज़ाइन हमने चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। हमने क्या करना है, यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, फाइनल वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट हम उसको क्या करते हैं, हम कंप्लीट करते हैं। द रिक्वायरमेंट एंड डिजाइन मॉडल स्टार्टेड इन एलेबोरेशन फेज आर कंप्लीटेड टू रिफ्लेक्ट द फाइनल वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट। लाइक हमने एक स्पेसिफिक अगर इंक्रीमेंट पिक किया हुआ है सॉफ्टवेयर का, कि हमने इसका क्वालिटी मॉड्यूल के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उन तमाम चीज़ों को, एक तो इस डिज़ाइन को फाइनलाइज करते हैं, एक तो ये काम हम कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा हम क्या करते हैं, इसी डिज़ाइन को लेके, ठीक है, कि इस स्पेसिफिक इंक्रीमेंट स्पेसिफिक मॉड्यूल में हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, हम क्या करते हैं, कोड को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। यानी आप यूँ कह लें कि डिज़ाइन को दोबारा एक दफ़ा रिव्यू किया जाता है कि हमारे पास ये चीज़ें जो हैं वो फाइनल शेप में आ जाएं, और फिर इस फाइनल शेप की बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, सोर्स कोड जो है उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। और इसके साथ साथ वी यूज टू परफॉर्म द यूनिट टेस्ट। हम यूनिट टेस्ट से क्या मुराद है, अब यहाँ पे एक बिग पिक्चर आपको देता चलूँ कि हमारे पास अगर टेस्टिंग की फिलहाल दो कैटेगरीज आपको मैं समझाऊँ, यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग क्या होगी, कि जब हम किसी एक सॉफ्टवेयर के, फॉर इंस्टेंस अगर हम यूँ कहते हैं कि ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हमारे पास एक फैकल्टी का मॉड्यूल था, स्टूडेंट का मॉड्यूल है, एडमिन है, और हमारे पास एग्जामिनेशन का मॉड्यूल है। तो अब ये फैकल्टी मॉड्यूल भी अगर हम बात करें तो प्रॉब्ली इसमें बहुत सारी क्लासेस होंगी, बहुत सारी सब फंक्शनैलिटीज़ होंगी। हम क्या करते हैं, हम इन छोटी छोटी चीज़ों को कोड करते जाते हैं और टेस्ट करते जाते हैं, हर एक इंडिविजुअल आइटम को कोड करते जाएंगे और टेस्ट करते जाएंगे। तो ये एक इंडिविजुअल कंपोनेंट की इंडिपेंडेंट जो टेस्टिंग होती है, इट इज़ कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। इसको बोलेंगे कि यूनिट टेस्टिंग बस कहलाती है, ठीक है। इसी तरह ये भी यूनिट टेस्टिंग होगी, ये भी यूनिट टेस्टिंग होगी, ये भी यूनिट टेस्टिंग होगी। फिर हम इनको जब मिला के टेस्ट करते हैं तो इट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। इसी तरह से ये एक्टिविटी इसके लिए भी कंटिन्यू करेगी, इसके लिए भी कंटिन्यू करेगी, इसके लिए भी कंटिन्यू करेगी, और फिर हम इन सारी चीज़ों को इकट्ठे भी तो टेस्ट करेंगे ना। तो ये हमारे पास एक और वर्जन आपको मिलेगा इंटीग्रेशन टेस्टिंग का। तो एनीवे यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूनिट टेस्टिंग हम जो होती हैं वो हम यूनिट टेस्ट को डिज़ाइन करते हैं यहाँ पे, ठीक है, और उनको परफॉर्म करते हैं। डिज़ाइन करने से क्या मुराद है, अब डिज़ाइन करने से मुराद ये है कि जी ओके हम ये कह रहे हैं कि जी हम यूज़र को एक ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक जो यूज़र की रिक्वायरमेंट थी, वो यूज़र की रिक्वायरमेंट लॉगिन, सिस्टम में लॉगिन करना, ठीक। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका यूनिट टेस्ट अगर हमने डिज़ाइन करना है लॉगिन के केस में, तो लॉगिन के केस में हमारे पास का यूनिट टेस्ट जो डिज़ाइन करने से मुराद है, डिज़ाइन करने से मुराद यहाँ पे ये हो रहा है कि हमने क्या करना है, बताना है कि जी हमारे पास ओके जो जो सिस्टम है इसके ऊपर अगर हम ये इनपुट देते हैं, ठीक है, तो इसमें जो इनपुट डेटा ये है, इसकी जो
एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो ये आनी चाहिए। यानी लॉगिन के केस में अगर हम आईडी पासवर्ड वैलिड देते हैं तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, द यूजर शुड बी लॉग इन टू द सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट क्या होनी चाहिए, एक्चुअल आउटपुट से मुराद ये है कि जब हम जिस सिस्टम को टेस्ट करने जा रहे हैं, एक्सपेक्टेड तो ये है कि वैलिड के केस में इसे क्या करना चाहिए, लॉग इन कर देना चाहिए। लेकिन एक्चुअली जब सिस्टम के ऊपर हमने ये स्पेसिफिक इनपुट दी तो क्या उसने वाकई उसे लॉग इन कर दिया या नहीं कर दिया। अगर ये एक्सपेक्टेड और एक्चुअल आउटपुट्स हैं, ये दोनों आपस में मैच करती हैं, तो इसका मतलब ये हमारा टेस्ट केस पास हो गया। टेस्ट केस पास हो गया तो इसका मतलब ये यूनिट टेस्ट जो है इसने पास कर लिया। जस्ट एक हाइपोथेटिकली बहुत ही लिमिटेड लेवल के सिनेरियो के ऊपर आई ट्राई टू लेट यू नो कि हमारे पास जो यूनिट टेस्ट होते हैं ये डिज़ाइन कैसे किए जाते हैं। दिस इज काइंड ऑफ डिज़ाइन जिसमें हम बताते हैं इनपुट क्या होगी, एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगी, एक्चुअल आउटपुट हम स्पेसिफाई कर देते हैं और फिर हम एग्जीक्यूट करते हैं, मींस एक्चुअली इन्हें परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यूज केसेस आर यूज्ड एज अ सूट फॉर एक्सेप्टेंस टेस्ट। ये कह रहे हैं कि यूज केसेस हमारे पास एक बेंचमार्क हैं, या उनको हम सामने रखते हुए देखते हैं कि हमारे पास जो टेस्ट है वो पास हुआ है या नहीं किया हुआ। तो इसकी एग्जांपल यूं लेते हैं, हम ये कहते हैं कि जी लॉगिन सिस्टम के अंदर करना, दिस इज अ यूज केस। सिस्टम में लॉगिन करना ये क्या है हमारे पास, ये एक यूज केस है। ऑब्वियसली हमने क्या कहता है, यूज केस क्या होता है, सिनेरियो ऑफ इंटरेक्शन ऑफ यूजर विद द सिस्टम। अब फॉर इंस्टेंस अगर एक यूजर है, अगर ये हम सिस्टम कह रहे हैं तो वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है इन केस ऑफ लॉगिन, लॉगिन कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास यूज केस है। ये इनफैक्ट मैंने आपको एक रिप्रेजेंटेशन भी बता रही है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। हमें जो यूएमएल रिप्रेजेंटेशन बताती है, यूएमएल जो यूज केस डायग्राम की, वो ये है कि एक आपका एंड यूजर है जो कि फॉर इंस्टेंस अगर हम स्टूडेंट कह देते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं स्टूडेंट। ये किससे कम्युनिकेट कर रहा है, सी यू ऑनलाइन के साथ। सी यू ऑनलाइन के साथ क्या किस कैपेसिटी में इंटीग्रेट कर रहा है, लॉगिन के केस में। तो अब क्या कह रहे हैं कि ये कहते हैं कि यूज केसेस को आप एज बेंचमार्क लें इन ऑर्डर टू परफॉर्म द यूनिट टेस्टिंग। तो हमने क्या किया, हमने यही किया ना, हमने लॉगिन को लिया, लॉगिन के केस में यूज केस यूनिट लेवल का सॉरी यूनिट लेवल का हमने टेस्ट केस डिजाइन किया, ठीक है, और फिर उसको एग्जीक्यूट करके आप डिटरमिन कर लेते हैं। ओके, माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो अगली स्टेज होती है, इस तरह मैं आपको बता चुका हूँ कि यूनिट टेस्टिंग के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज टू परफॉर्म इंटीग्रेशन टेस्टिंग। और डेफिनेटली दिस इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज कंडक्टेड आफ्टर आफ्टर द कंपोनेंट्स आर इंटीग्रेटेड, यानी ये कंपोनेंट इंटीग्रेट हो जाएंगे, ये सारे इकट्ठे मिलकर काम कर रहे होंगे। लाइक अगर हम बात करें कि ये हमारे पास कंपोनेंट है, तो ये सारे कंपोनेंट्स आपस में मिलके जिस तरह से एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, तो इस पूरे के ऊपर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ये यूनिट टेस्टिंग क्या होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, इसको इंशाल्लाह हम जो हमारे इसी फ्लो से अगर जाएं तो ये हमारे पास एक लास्ट एक्टिविटी बनती है, ठीक है, अपने ओवरऑल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में। तो यहाँ पे इन चीज़ों को हम खासा डिटेल में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट कम्स द ट्रांजिशन। ट्रांजिशन आपके पास आ जाती है, एंड इफ यू लुक इनटू द ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के केस में ये इट कंसिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। तो इसका मतलब ये है कि कुछ अगर हमारा रिमेनिंग वर्क रहता है कंस्ट्रक्शन का, तो हम क्या करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, और उसके साथ साथ वी टुक इनिशिएटिव अबाउट द डिप्लॉयमेंट काइंड ऑफ थिंग। डिप्लॉयमेंट जिसमें हम सॉफ्टवेयर को डिलीवर करना है, फीडबैक के ऊपर काम करना है। तो इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो सॉफ्टवेयर इज गिवन टू द एंड यूजर। हम सॉफ्टवेयर एंड यूजर को देते हैं, एंड वी यूज टू परफॉर्म द बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग क्या है कि हम सॉफ्टवेयर को एंड यूजर को दे देते हैं, वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है। हम बीटा वर्जन रिलीज जैसे करते हैं, आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर के बीटा वर्जन देखे होंगे, वो सिस्टम जो बहुत ज़्यादा मिच्योर नहीं होता, हम यूजर को देते हैं, कहते हैं कि ओके यूज टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम एंड लेट अस नो व्हाट आर इश्यूज विद द सिस्टम। तो इस यूजर की इंटरेक्शन के बाद टेस्टिंग हो रही होती है, हम उसे बीटा टेस्टिंग कहते हैं। और फिर क्या करते हैं, वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं और जो भी इशू नोट डाउन करते हैं, ठीक है, और हम यूजर के जो फीडबैक है वो उसे रिपोर्ट करता है, क्या अपने जो डिफेक्ट्स और क्या है जो उसे चेंजेस रिक्वायर्ड होती हैं उनको रिपोर्ट करता है, ठीक है, डिफेक्ट्स को रिपोर्ट करता है और जो उसके अलावा उसकी चेंजेस रिक्वायर्ड होती हैं वो रिपोर्ट करता है। तो ये हमारे पास कहाँ पे आता है, ये ट्रांजिशन फेज में आता है। इसके अलावा हम क्या कर रहे होते हैं यहाँ पे, द सॉफ्टवेयर टीम क्रिएट्स नेसेसरी सपोर्ट इन्फॉर्मेशन। अब सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, यूजर मैनुअल बनाए जाते हैं। यूजर मैनुअल यानी हाउ टू यूज द सिस्टम। अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक ट्रबल्स की सिचुएशंस हो सकती हैं, लाइक यहाँ ये प्रॉब्लम आ सकता है सिस्टम के केस में, या नोन प्रॉब्लम होते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, फिर ट्रबल शूटिंग गाइड प्रोवाइड कर देते हैं।
इंस्टॉलेशन के जो प्रोसीजर्स होते हैं वो एंड यूज़र को बताना, ये भी हमारे पास क्या है, इन तमाम चीज़ों के लिए वी यूज टू डेवलप डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, वो हमारे पास मैनुअल होते हैं, ट्रबल शूटिंग गाइड्स होती हैं, इंस्टॉलेशन प्रोसीजर होते हैं, जो कि हम ट्रांजिशन फेज में करते हैं और ये हमें प्रोवाइड करने होते हैं किसी एंड यूज़र को। और आखिर में हम क्या कर रहे होते हैं ट्रांजिशन फेज के, सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट बिकम्स यूजेबल सॉफ्टवेयर रिलीज। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होता है, जो हम कह रहे हैं कि ये हम डिलीवर करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ये फाइनल रिलीज के तौर पे हमें अवेलेबल होता है या हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब अगर हम बात करें प्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमने रिलीज के ऊपर बात की है, ठीक है, कि हमारे पास अगर एक्सप्लिसिटली इस पार्ट की बात करते हैं, दैट इज अबाउट सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट और सॉफ्टवेयर रिलीज। तो इसमें क्या हो रहा होता है बेसिकली, the production phase of the unified process is same as deployment activities as the generic phase। तो अब यहाँ पे कहें तो डिप्लॉयमेंट के काफ़ी सारे काम तो हमारे ऑलरेडी ट्रांजिशन में हो गए। कुछ चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे होते हैं, लाइक हमने एक इंक्रीमेंट दे दिया यूज़र को, तो ऑन गोइंग यूज जो सॉफ्टवेयर का होता है उसको मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में अगर कोई इश्यूज आते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, तो उसमें सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। इसी तरह से अगर सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए डिफरेंट डिफेक्ट्स रिपोर्ट किए जाते हैं या कोई चेंज की रिक्वेस्ट आती है, जिस तरह हमने लास्ट स्लाइड के ऊपर भी देखा, तो अगेन इट बिकम्स पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन फेज कि सॉफ्टवेयर ऑपरेशनल होने के बाद उसके जो वर्किंग कंडीशन में है उस वक्त हम इसे मॉनिटर करते हैं, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के हवाले से जो इश्यूज होते हैं उनको देखते हैं, और जो यूज़र की तरफ से डिफेक्ट्स रिपोर्ट्स होते हैं या चेंज रिक्वेस्ट आती हैं हम उनको यहाँ पे एड्रेस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हमने खासा डिटेल में यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल, जो कि हमारे पास एक एडवांस प्रोसेस मॉडल है और रिसेंट टाइम्स में इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, हमने उस मॉडल को समझा कि हमारे पास यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल क्या होता है। उसके हमने हिस्ट्री के ऊपर बात की, उसके हमने प्रोडक्शन को थोड़ा सा देखा कि हमारे पास क्या होता है। फिर हमने देखा कि यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल चूंकि फॉलो कर रहा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को, तो ये ज़रूरी था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच क्या है और इसके क्या डिफरेंसेस हैं स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ। इस चीज़ को आपको एलेबोरेट किया गया। और फिर हमने फेजेस देखे, जिस तरह हमने बाकी मॉडल्स में फेजेस देखे, तो यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल्स में हमने फेजेस के ऊपर बात की। और फिर हमने रिलेशनशिप भी समझने की कोशिश की, इसके अगर फेजेस डिफरेंट हैं तो ये कैसे डिफरेंट हैं और इसमें क्या सिमिलरिटीज एग्जिस्ट करती हैं, जो कि जेनेरिक सॉफ्टवेयर प्रोसेस हमें फेजेस प्रोवाइड कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम चीज़ों को आपने जो है लर्निंग बाय हार्ट की तरफ नहीं जाना, रादर आपने इन चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका मैंने आपको एक ब्रीफ टच यहाँ पे दिया है, जिनको हम फर्दर डिटेल में आगे देखेंगे। लाइक जिस तरह हमने यूज़ केसेस की बात बहुत डिटेल में नहीं गए, प्रीलिमिनरी यूज़ केसेस में बहुत डिटेल में नहीं गए, रिफाइंड यूज़ केसेस में डिटेल में नहीं गए, तो इन तमाम चीज़ों को हम आगे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, नीड नॉट टू वरी, इन चीज़ों को हम डेफिनेटली सारी चीज़ों को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंडिंग इनके बारे में क्या है। तो अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, और लेक्चर आप ज़रूर सुनिएगा अपकमिंग हमारा इंटरेक्टिव सेशन होने से पहले।